ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਯਾਨੀ ਯੋਧਾ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਖੱਤਰੀय। ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਖੱਤਰੀय ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਖਿਲੰਦੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਮੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ, ਇਹ ਸਭ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਐ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਖੱਤਰੀय ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿਆਂ, ਬਦਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਤਵੀਰਯ ਅਰਜੁਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ। ਸਹਸਰਾ ਅਰਜੁਨ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜਮਦਗਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਾਂ ਖੋਲੇ ਗਈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਤਲਬ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਹੈ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਨ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ। ਹਾਂ ਭੀਸ਼ਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਬਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 23 ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। 22 ਦਿਨ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਚ ਸਨ, ਧਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕੋਲ, ਪਰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਤਲਬ ਖੱਤਰੀय ਹੋਣਾ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਠੋਰ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ। ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਹਨ। ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਮਤਲਬ ਅਮਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 7 ਜਾਂ 8 ਮਹਾਪੁਰਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਮਰਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੜੀ ਨਾਟਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਮਦਗਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਰੇਣਕਾ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰ ਮੰਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੇਂਦਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ਼ੂ ਮਤਲਬ ਕੁਹਾੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਸ਼ੂ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੋਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਂਕਣ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਰਲ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਰਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਰੋਲੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬੂਦਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਹਾਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਟਕਰਾ, ਕਦੇ ਸਹਿਯੋਗ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਨਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਯੋਧਾ, ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ, ਦੋਵੇਂ। ਇੱਕ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਰਿਸ਼ੀ, ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਾਪਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ, ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ, ਗਿਆਨ ਵੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ है। आज हम भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, उनकी काफी दिलचस्प और कुछ तजादात से भरी शख्सियत पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जराए हैं, कुछ नोट्स, कुछ मजामीन, उनमें एक ऐसी हस्ती का जिक्र मिलता है जो बेवक्त ऋषि भी हैं और जंगजू भी। तो हमारा मकसद है उनकी कहानी के अहम पहलुओं को समझना और ये देखना कि हिंदू धर्म और सकाफत पर उनका क्या असर रहा है। उनकी एक बहुत खास पहचान ब्रह्म कश्त्रिया होना है, यानी एक ही शख्सियत में ब्राह्मण का इल्म भी और कश्त्री की ताकत भी। ये तो मतलब रिवायती सामाजिक तकसीम के लिहाज से काफी गैर मामूली बात लगती है ना? बिल्कुल, और यही पहलू इन्हें बहुत मुनफरिद बनाता है। परशुराम जो है वो ऋषि जमदग्नि और रेणुका के बेटे हैं, विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। और वो ऐसे दौर में आए जब कहा जाता है कि जमीन पर जुल्म, नाइंसाफी बहुत बढ़ गई थी। परशुराम नाम का मतलब ही है कुल्हाड़ी वाले राम। ये उनके मशहूर हथियार परशु यानी कुल्हाड़ी की तरफ इशारा है। और ये जो ब्रह्म कश्त्रिया वाली बात है, ये सिर्फ नाम की नहीं, ये उनके किरदार और उनके आमाल में भी नजर आती है। अच्छा, और उनके आमाल में कुछ काफी मुतनाज़िया वाक़यात भी शामिल हैं, जैसा कि ज़राए बताते हैं। खास तौर पर अपनी वालदा रेणुका का सर कलम करने वाला वाक़या, वो तो बहुत शदीद है। जी हाँ, ये एक बहुत ही पेचीदा और आप कह सकती हैं चौंका देने वाला वाकया है। अपने वालिद ऋषि जमदग्नि के हुक्म पर उन्होंने अपनी माँ का सर कलम किया, लेकिन जब उनके वालिद खुश हुए तो उन्होंने वरदान मांगा, यानी एक तरह की दुआ या नेमत, जिससे न सिर्फ उनकी वालदा दोबारा जिंदा हो गईं, अच्छा, बल्कि परशुराम को नाकाबिले शिकस्त होने और लंबी उम्र यानी चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला। तो ये वाकया इताअत, धर्म और उसके जो नताइज होते हैं उन पर कई सवाल उठाता है। उनका शायद सबसे मशहूर काम वो जालिम कश्तरी हुक्मरानों का 21 बार खात्मा करना है। कहा जाता है कि ये उन्होंने कायनात का तवाज़न, वो कॉस्मिक बैलेंस बहाल करने के लिए किया। ये असल में ताकत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बहुत शदीद रद्द-ए-अमल था। 21 बार, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और एक रिवायत ये भी है कि उन्होंने उन कश्तरियों के खून से 5 झीलें भर दी थीं, जिन्हें समांत पंचक कहा जाता है। ये आज के कुरुक्षेत्र के करीब हैं। तो ये अमल जो है, ये कश्तरी धर्म के पसे मंजर में देखा जाता है, जिसके फराइज में हिफाजत, बहादुरी शामिल है। जैसा कि भगवत गीता में भी जिक्र है कि शौर्य यानी बहादुरी, तेजी, साबित कदमी, महारत, जंग से न भागना, दान देना, हुक्मरानी करना, ये सब कश्तरी के फितरी काम है। अच्छा, और वो चिरंजीवी भी हैं यानी लाफानी। ये हिंदू तस्वुर में वो खास हस्तियां हैं ना, जिनके बारे में माना जाता है कि वो कलयुग के खात्मे तक जिंदा रहेंगे। जैसे हनुमान जी भी हैं। जी बिल्कुल, हनुमान जी, महाबली, अश्वत्थामा, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी मानी जाते हैं। और ये अमर्थ यानी मुकम्मल लाफानियत से थोड़ा मुख्तलिफ है। सही, और इनकी ये जो लाफानी हैसियत है, ये इनके वालिद से मिले वरदान का नतीजा है। बिल्कुल, और ये भी माना जाता है कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या यानी गहरी इबादत में मसरूफ हैं और विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी, पेशगोई है कि परशुराम मुस्तकबिल में कल्कि के गुरु बनेंगे, उन्हें जंगी फुनून सिखाएंगे। तो मतलब वो माजी में भी अजीम गुरु रहे हैं, महाभारत के किरदारों के हवाले से? जी हाँ बिल्कुल, महाभारत के कई बड़े जंगजू जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और खास तौर पर कर्ण, ये सब उनके शागिर्द रहे। कर्ण? ओ हाँ, कर्ण की कहानी तो बहुत अहम है। जी, क्योंकि कर्ण ने अपनी असल शनाख्त यानी वो सूत पुत्र है, ये छुपाकर उनसे तालीम हासिल की थी। जब परशुराम को सच्चाई पता चली तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, एक तरह की बद्दुआ, कि वो सबसे अहम, सबसे जरूरत के वक्त अपनी सीखी हुई विद्या, अपना इल्म भूल जाएगा। और इस श्राप का महाभारत की जंग के नतीजे पर बहुत गहरा असर पड़ा। जी बिल्कुल। अच्छा, इनका असर सिर्फ कहानियों या जंगों तक ही महदूद नहीं बल्कि जमीन पर भी नजर आता है। वो हिंदुस्तान के मगरबी साहिल की तख्लीक की कहानी, परशुराम का चित्र। हाँ, ये बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी समंदर में फेंकी और समंदर पीछे हट गया, जिससे केरला,
और कोंकण समेत मगरबी साहिल की जमीन वजूद में आई। अच्छा, इस कहानी का ताल्लुक खास तौर पर केरला की नंबूदरी ब्राह्मण बरादरी की इब्तिदा से जोड़ा जाता है और वहाँ की जो सकाफती शनाख्त है उससे भी। केरलोपति जैसी किताबों में इसका जिक्र मिलता है। केरलोपति ये क्या है? ये केरला की रिवायती तारीख और समाजी ढांचे को बयान करने वाली एक अदीम किताब है। अच्छा, और इनसे मंसूब कई मंदिर भी हैं फिर? जी, पूरे हिंदुस्तान में, जैसे झारखंड में टांगी नाथ धाम है, वहाँ कहते हैं उनकी कुल्हाड़ी आज भी जमीन में गड़ी हुई है। वाकई? जी। फिर राजस्थान में परशुराम महादेव गार मंदिर है। केरला में एक हजारों साल पुराना श्री परशुराम स्वामी मंदिर है। तो ये जगहें आज भी उनकी याद ताजा रखती हैं। और आज के दौर में भी उनकी अहमियत है। परशुराम जयंती का त्योहार मनाया जाता है, वो अक्षय तृतीया के दिन आता है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह है कि इनसे जुड़ी शख्सियात जैसे उनकी वालदा रेणुका, उनकी अकीदत भी बहुत ज्यादा है। कर्नाटक में श्री रेणुका यल्लमा देवी मंदिर इसकी एक बड़ी मिसाल है। वहाँ नए चांद के दिन लाखों लोग जमा होते हैं। कभी कभी तो 5 लाख तक अकीदतमंद आ जाते हैं। 5 लाख? जी। तो ये जो कदीम अकीदत है, ये आजकल कुछ जदीद मसाइल भी पैदा कर रही हैं, जैसे पानी और हवा की आलूदगी। वहाँ हल्दी पाउडर, जिसे भिंडारा कहते हैं, वो पानी में मिलाने से या लकड़ी जलाने से काफी आलूदगी होती है और त्योहारों पर बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जाता है। एक त्योहार पर 90 टन तक, जबकि वहाँ सहूलियात की कमी है। ये तो एक बड़ा मसला है। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे कदीम शख्सियात से जुड़ी मजहबी सियाहत आजकल माहौलियाती चैलेंजेस का बाइस बन सकती है। तो खुलासा ये कि परशुराम वाकई एक बहुत पेचीदा शख्सियत हैं। वो तख्लीककार भी हैं, जैसे जमीन बनाने वाले, और तबाह करने वाले भी। ब्राह्मण आलिम भी हैं और कश्तरीय जंगजू भी। कदीम भी हैं और चिरंजीवी होने की वजह से एक तरह से हमेशा मौजूद भी। जी बिल्कुल। और आखिर में एक सोचने की बात शायद ये हो सकती है कि परशुराम की कहानी धर्म यानी फर्ज या अखलाकियात और अमल के दरमियान एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन को जाहिर करती है। तो ये सवाल पैदा होता है कि मुख्तलिफ माशरे तवाज़ुन कायम करने के नाम पर तशद्दुद को किस हद तक जायज़ करार दे सकते हैं, खासतौर पर जब बात ऐसी शख्सियात की हो जिनमें आप कह लें पुजारी का इल्म भी हो और जंगजू की ताकत भी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मेरे ख्याल में गौर किया जा सकता है। हर हर महादेव। क्रोध और करुणा के अद्भुत संगम, भगवान विष्णु के छठे अवतार की अद्भुत गाथा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कल्पना कीजिए एक ऐसे ब्राह्मण की जिसके तप का तेज सूर्य जैसा और क्रोध ऐसा कि प्रलय आ जाए। एक हाथ में वेद और दूसरे में वो फरसा जिसने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। ये कहानी है उस अमर योद्धा की, उस दिव्य दृष्टा की, जिसे दुनिया भगवान परशुराम के नाम से जानती है। आज हम उनके जन्म, उनकी शक्ति, उनके क्रोध और उनके त्याग की अनोखी गाथा में डुबकी लगाएंगे। भगवान परशुराम का जन्म भृगु वंश में ऋषि जमनाग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी उनमें क्षत्रिय का तेज और योद्धा की आत्मा थी। ये एक अद्भुत संयोग का परिणाम था। उनकी माता रेणुका ने गलती से वो दिव्य खीर खा ली थी जो एक वीर क्षत्रिय पुत्र के लिए बनाई गई थी। इसलिए परशुराम में शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान समाहित हो गया। अपनी इस क्षत्रिय वृत्ति को सार्थक करने और अधर्म का नाश करने की शक्ति पाने के लिए उन्होंने कैलाश पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र व एक अखंड अविनाशी परशु प्राप्त किया। इसी परशु को धारण करने के कारण भार्गव राम बन गए परशुराम, यानी परशु के साथ वाले राम। उनकी शक्ति का प्रमाण उनका अपने गुरु स्वयं भगवान शिव के साथ हुआ युद्ध है, जिसमें उन्होंने अपने परशु से महादेव के माथे पर प्रहार कर एक चोट का निशान बना दिया, जिसे शिव ने गर्व से एक आभूषण की तरह स्वीकार किया। पर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अहंकारी क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके पिता ऋषि जमनाग्नि की कामना पूरी करने वाली दिव्य गाय कामधेनु को चुराने का प्रयास किया और निर्ममता से उनके पिता का वध कर दिया। पिता का रक्त रंजित शरीर, उस पर पड़े 21 घाव और माँ रेणुका का हृदय विदारक क्रंदन देखकर परशुराम के अंदर क्रोध की ज्वाला ऐसी भड़की कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो इस धरती को 21 बार अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे, और उन्होंने अपनी इस भयंकर प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। इसके बाद उन्होंने जीती हुई सारी धरती को दान कर दिया और महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए, ये साबित करते हुए कि उनका युद्ध सत्ता के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए था। परशुराम की गाथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। तो ये थी भगवान विष्णु के उग्र अवतार परशुराम की कहानी। एक योद्धा, एक ऋषि, एक गुरु और एक अमर चिरंजीवी जो आज भी इस धरती पर हैं। तो कैसा लगा आपको क्रोध और न्याय का ये अद्भुत संगम? अगर आपकी रगों में भी अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने का जोश जाग गया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं, शेयर करें और कमेंट में जय परशुराम का नारा गूंजने दें। ऐसी ही दिव्य गाथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक धर्म के पथ पर चलते रहें और सत्य का साथ दें। जय हिंद।